So today we will be discussing on a very important topic, that is expressing heartfelt communication. Many times we have seen what is our experience in the world is that kitna bhi aap koshish kar lo, the other person is not satisfied at all. The reason is, what is the reason? The reason is very simple. If you go to State Bank of India and you deposit in dollars, State Bank deposit lega kya? Yes or no? Show me with your head, yes or no? So उसी तरह the love languages are 5 in number. अगर किसी का डॉलर है, किसी का यन है, किसी का रुपी है, ये हम लोग को समझने की जरूरत है कि भगवान ने जिसको जिस प्रारब्ध कर्म के साथ, जैसे पर्सनैलिटी प्लस में 4 टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं, टाइप 1 सैंग्विन, टाइप 2 कॉलेरिक, टाइप 3 मेलंकली and type 4 is phlegmatic. उसी तरह there are 5 love languages, and if you use the language which the other person is not understanding, आप कितना भी मेहनत कर लो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. How many of you are able to resonate with me? Raise your hands. Okay, so introduction is already covered. I'll not be going into this. Okay, now what is the difference in falling in love and real love? Can anyone tell me? Yeah, love is a very misunderstood word in the material world, and we need to just check. We need to understand that what is the difference between falling in love and real love. So one is called the hormonal love, जो कि movies में, romance में, हीर रांझा, रोमियो जूलियट ये सब है. ये बस hormonal love है, इसका कोई actual physical मतलब ये कोई, it is not substantial thing and it will not last. But real love is the test of time when two persons can continue their relationship on and on and on, and that is the real test of it. Okay, so let us understand the difference between falling in love and is this real love. Number one, meeting someone whose physical characteristics and traits create an electric shock and bells go off. वो पहली बार देखा तुझे तो ऐसा लगा जैसे ऐसे वैसे वैसे वैसे, that is actually falling in love, or that is the chemical love. Number two, we start getting tingles and we ask ourselves, is this the real thing? We start making promises and start thinking that it would be wonderful to spend life with him or her. The people in love see each other as perfect and compatible and can't see the flaws. They think they are perfect for one another. बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़ा बड़ा होप होता है, मंद मंद सुगंधित हवा चलने लगती है, बोलियां भी कोयल की तरह हो जाती है, आसमान भी निराला लगता है, दुनिया बदल सी जाती है. The dreams before marriage are of bliss, and the belief is that love will last forever. And being in love is an alternative to get over loneliness, right? So we will be seeing one by one of all this in a lot of details. I want to mute the participants. Pranav, to do it. हाँ, participants एक बार mute करो. All of you, please keep yourself muted. आपको सर्दी जुकाम हुआ है क्या? आपको क्या लग रहा है विनिता? आप तो कम डॉक्टर नहीं लग रहा है हो. कि सर्दी जुकाम का असर है. लग रहा है कि सर्दी जुकाम का असर है. आपके वॉइस लग रहा है. हाँ, वॉइस एकदम चेंज हो गया है. यह बहुत एक्सर्शन थोड़ा हो गया था. कमिंग वीक, यू नो, लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल. वो मकर संक्रांति के दिन उन लोगों ने एक हरिनाम संकीर्तन रख दिया था, और वो खुटी विलेज में था, तो वहां पंडाल प्रोग्राम था और रात को 11:15 तक चला गया वो. सो एकदम ठंड ने ये कर दिया, यू नो. लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है आज जिसकी वजह से अंदर में थोड़ा सा एंगर आपके उबल रहा है. थोड़ा सा एंगर के पहले एक डी लगा दीजिए तो डेंजर हो जाएगा, है ना. तो मैंने डी को हटा दिया, इसीलिए शायद एंगर है. ऐसा कुछ ये नहीं है, नथिंग लाइक एंगर और एनीथिंग, बिकॉज अभी लव का टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर एंगर होगा भी तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा. तो हमारे विनीत दा इज अमेजिंग फेस रीडर. गिव अ बिग हैंड फॉर विनीत राय जी. हाँ, वी हैव डन अ लॉट ऑफ सेशंस ऑन फेस रीडिंग टुगेदर.
So we welcome Sudha ma'am has joined us and Ankita, Arya ma'am, Yashika ma'am and others. और आज का सेशन आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देगा. बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा. याद रखिएगा कि टाइप 1 पर्सनैलिटी जो होता है उसका एक बहुत, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एज फार एज पॉसिबल कीप योर वीडियोज ऑन. नहीं तो मुझे लगता है पर्दे के उधर से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं आप लोग को नहीं देख पा रहा हूं, विच इज नॉट अ फेयर एनर्जी एक्सचेंज. ओके, सो एटलीस्ट ट्राई टू कीप योर वीडियोज ऑन. जो टाइप 1 पर्सनैलिटी होता है उसके जीवन में उसको बहुत जरूरी होता है ड्रामा. ड्रामा के बिना वो जी नहीं सकता है. तो जैसे सब कुछ जीवन में उसका अच्छा चल रहा है तो वो एक पिंग मारता है या कैरम का गोटी को एक टोका मारता है तो लाइफ में थोड़ा हलचल हो जाता है. क्या होता है? लाइफ में थोड़ा हलचल हो जाता है. जैसे मान लो वो जा रहा है और बेसिन में कोई कुछ करेगा तो वो बोल रहे क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा कुछ नहीं. तो वो बोलेगा कुछ नहीं कैसे, तुम कुछ तो कर रहे हो. और फिर एक छोटा सा बात होगा, फिर थोड़ी बातचीत होगी, फिर थोड़ी मीटिंग हो जाएगी, फिर थोड़ा बात हो जाएगा. तो सैंग्विन्स को बहुत अच्छा लगता है. मेलंकली को समझ में नहीं आता कि अरे ये हलचल करने की क्या जरूरत है, शांति से रहो ना. फ्लेग्मेटिक भी शांति से, लेकिन सैंग्विन रह नहीं सकता. थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा हलचल, थोड़ा सा टोकाबाजी, थोड़ा सा कोटाबाजी, थोड़ा सा फोचाबाजी, ये चलता ही है. राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन फॉलिंग इन लव एंड राइजिंग इन लव. वो जो पहली बार जब हम मिले, वो वाला जो प्रेम होता है, that is hormonal love. That is nothing to give and take with love, and 100% it will not last. 100% it will not last. बस समय को समय दीजिए, टाइम के साथ सब पता चल जाएगा. इसका प्रॉब्लम क्या है? The information that this exact feeling in love will last forever. ये प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि ये प्रेम हमेशा रहेगा और लगेगा कि मैं हमेशा स्टे हाई फॉर एवर रहूंगा. और द इम्परफेक्शन एंड फ्लॉज वोंट मैटर एंड दे विल बी ओवरकम. चौथा, द बोर्डम, द टॉलरेंस नीडेड, द एक्सैस्परेशन, द चेंज इन फॉर्म्स, द डलनेस and not feeling loved at all times is not considered as a part of definition in love. यानी ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसा प्रेम करे जैसा कि कभी नहीं हुआ. बहुत लेडीज लोग और जेंट्स लोग को यह प्रॉब्लम है कि मेरा पति या मेरा पत्नी मुझे उतना प्रेम नहीं करते. तो कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, काउंसलर के पास आते हैं, और पत्नी सीधे बोलती है डॉक्टर साहब ये तो मुझे प्रेम ही नहीं करते हैं. अब मैं तो अंदर से समझता हूं कि इट इज नॉट योर जॉब टू लव मी, इट्स माइन. कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता है. हम सिर्फ अपने आप से प्रेम कर सकते हैं और परमात्मा हमें प्रेम कर सकते हैं. दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड. We will be slowly understanding this in a very deep way. आप लोग आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं? Please don't discuss. What is real love? तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हार्मोनल लव क्या होता है, और अभी रियल लव ध्यान से सुनिए, क्योंकि समय धीरे धीरे प्रूव करता है कि आपका लव हार्मोनल लव है या रियल लव है. नंबर 1, love that is conducive to the emotional growth of a person. अगर आप एक फूल से प्रेम करते हैं तो आप पौधे को हर दिन पानी देंगे. If you love a flower, you will water it daily. If you like a flower, you will pluck it out. Love that is considered a choice that one makes every day. क्या आपके लव में फोर्स है या आपके लव में फ्रीडम है? ये आप चेक कीजिएगा. अगर आपके लव में फोर्स है यानी वो हार्मोनल लव है, और अगर आपके लव में पावर है वो रियल लव है. फोर्स इज हार्मोनल, पावर इज रियल. Love that encourages growth of each other, husband, wife, father, mother, sister, brother, friend, relatives, that is real love. Love which unites reason with emotion. Reason दिमाग देता है,
इमोशन दिल देता है। जो लव दोनों को जोड़ता है वो रियल लव है। और पांचवा, लव दैट मेक्स अ कमिटमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर द लव्ड वन, दैट विच मेक्स अ कमिटमेंट टू नॉट डू सर्टेन थिंग्स फॉर द लव्ड वन, दैट इज रियल लव। अभी तक सबको सब समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल लव and what is the difference between real love? Let us understand this, because at every aspect of our life, from morning to night, the soul, just like a radar, is searching for signals of love, and until it experiences love, it doesn't experience depth, spirituality, and existence of the soul, because the nature of the soul is to receive and give love. Mamae vangsho jivaloke jiva bhuta sanatanaha. The nature of the soul is Sat, Chit, and Anand, eternal, full of knowledge, full of bliss. If a bird is there in the cage, open the cage and it comes, it is yours. Otherwise, it never was. चिड़िए के पिंजड़े को खोल दीजिए और शाम को चिड़िया लौट के आती है पिंजड़े में, वो आपसे प्रेम करती है। लेकिन पिंजड़े को खोलते ही अगर चिड़िया उड़ गया, समझिए कि आपने फोर्सफुली चिड़िया को रखा था। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जीवन को हैव टू में जी रहे हैं? सच सच हाथ ऊपर कर दीजिए। आपका जीवन में हैव टू ज्यादा है चूज टू से, यानी आप वो कर रहे हैं जो आप करने की इच्छा नहीं रखते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है जिसके साथ आप रहना चाहते नहीं है। आपको ऐसा जॉब करना पड़ रहा है जो आप करना चाहते नहीं है। आपको ऐसा भोजन करना पड़ रहा है जो आप खाना चाहते नहीं है। ऐसे लोगों के चेहरे सुबह से रात तक आपको दिख रहे हैं जो आप देखना चाहते नहीं है। तो आपका जीवन हैव टू में चल रहा है। कितने लोगों का जीवन चूज टू में चल रहा है। हर दिन सुबह आप उठ के डिसाइड करते हैं कि आज का दिन मैं इस तरीके से जीऊंगा। हाथ ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा। ओके, आई एम जस्ट सीइंग 1 or 2 hands raised, and we are not judging anyone. Our only purpose, this is from the international presentation of 5 love languages by Gary Chapman. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे आपकी दुनिया आज 1 घंटे में बदल जाएगी, जैसे पर्सनालिटी प्लस से बदल गई थी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके डॉलर डिपॉजिट नहीं कर सकते या यूएस के बैंक में रुपीस डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपको जो चीज से लव महसूस होता है, आप उसी को लव समझ के दूसरे को देते हैं, बट उससे उसको लव महसूस होता ही नहीं। What are the general principles for love to thrive? Love thrives when there is a physical, emotional, and an intellectual space along with the reassurance of love. When space is not given, there is suffocation and eventually love dies. आप चाहे गोवा के होटल में रुके या आप मुंबई के होटल या मॉरिशस में रुके, आपका दिमाग और ब्रेन हर जगह आपके साथ है, और आपका ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में वायरसेस हैं, आप कहीं भी खुश नहीं रह सकते। और आपके हृदय में अगर प्रेम नहीं है, चाहे आप कहीं भी रहे, स्क्रीनशॉट्स लेते रहे, अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, चाहे आप कहीं भी रहे, यू विल फील ड्राई एज अ वुड। So what is physical space? When a person is allowed the discretion to be independent and have his or her own space and simultaneously reassured of love. हम लोग क्या करते हैं ना, फैमिली में धमकी देते हैं। कैसा धमकी देते हैं? तुम अगर मेरे साथ बिस्तर में नहीं सोओगी, मैं आज से बात नहीं करूंगा। यानी you are giving a condition that अगर आज के लिए भी आप उतना स्पेस उसको नहीं दे रहे हैं, आप उसको सफोकेट कर रहे हैं। इमोशनल स्पेस, व्हेन अ पर्सन इज अलाउड द डिस्क्रीशन
to share or not share their feelings and thought, he is reassured of love. जैसे कई बार आजकल घरों में क्या होता है, यंग एडोलेसेंट बच्चे आते हैं, चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। और मैंने ये सीन देखा है, माताएं आके बाहर, बबलू बबलू खोलो ना, अरे मम्मी रख दो ना, मैं बाद में खा लूंगा। अरे बबलू खोल दे बेटा, एक बार मैं तेरा चेहरा देख लूं। क्या मम्मी बोर कर रही हो तुम? Now both are not understanding that the mother is not giving that emotional space to the child, and she's putting a condition that तुम दरवाजा खोलोगे तभी प्रेम माता को महसूस होगा. And third is the intellectual space, when a person is allowed to have different values, morals and belief and mind my statement and still reassured of love. हम लोग कैसे है ना, बड़ा डबल गेम खेलते हैं हम लोग दूसरे पार्टनर को इस तरीके से जता देते हैं इनडायरेक्टली कि तुम ऐसा करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करूंगा, और अगर तू ऐसा नहीं की और किया तो यू आर आउट. कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है? हाथ ऊपर कर दीजिए. कोई डायरेक्टली, देखिए हर आदमी हाथ उठा रहा है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली धमकियों में चलता है हमारा जीवन, धमकियों में. Love thrives when responsibility and freedom in a relationship go hand in hand. यानी आपके जीवन की जो रेलगाड़ी है, इसके दो ट्रैक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम. जब फ्रीडम होता है तो लोग उसको लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोग सोचते हैं मेरा तो फ्रीडम चला गया. बट यू कैन बी अ वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन along with complete freedom. ध्यान से सुनिएगा, freedom without responsibility leads to low self-esteem, boredom and meaningless activity, and self-worth comes from being responsible. सबको समझ में आ रहा है अभी तक? थोड़ा सा आज का टॉपिक लिटिल हैवी है, okay? And we will be discussing in details. Thank you very much. Relationships are integrated and we need to harmonize them. Nature has created us in such a way that we have many roles: mother, sister, friend, daughter, wife. And this needs to be harmonized. When we are obsessed with one relationship at the cost of other, the relationship becomes a burden. देखिए क्या होता है ना, हम लोग का झुकाव हमेशा एक तरफ हो ही जाता है. तो झुकाव एक तरफ होना तकलीफदायक नहीं है, लेकिन उसको प्रदर्शित करना दूसरों के सामने बहुत तकलीफदायक है. मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं. मैंने एक बहुत स्ट्रेंज चीज ऑब्जर्व किया मेरे पापा मम्मी के बीच में. ओपनली बता रहा हूं, जब मैं मम्मी से ज्यादा बात करता हूं ना, तो पापा को थोड़ा इनसिक्योरिटी होता है, और जब मैं पापा से ज्यादा बात करता हूं तो मम्मी मेरे को बोलती है, अब तो तुम्हारा अच्छा चल रहा है, मेरे से बात करने की तो कोई जरूरत नहीं है तुमको. नाउ कैन यू बिलीव दिस? होता है फैमिलीज में, कितने लोगों के फैमिलीज में होता है. तो क्या करना चाहिए भाई? अब क्या नाप तोल के बात करें क्या? जैसे आलू लेने जाते हैं, मम्मी तुमसे 5 किलो बात किया, पापा का 3 किलो है, 2 किलो खत्म करके फिर आते हैं. ऐसा होता है क्या? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन? कोई प्लीज बता दीजिए अनम्यूट करके, क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए? यस संजय. सर बैलेंस करके चलना पड़ता है. वाह, कितना सुंदर फिलोसफी है. ऑल ऑफ यू प्लीज गिव अ बिग हैंड टू संजय जी. कैसे करेंगे बैलेंस? ये तो सर आप बताएंगे. ओके ओके, एटलीस्ट गिव द फिलोसॉफिकल आंसर. देखिए इस विनीत आपका वाइन गिटार की इलेक्ट्रिकल गिटार हमें नहीं समझ में आ रहा है. प्रभु जी, यस,
आप बोले थे कि इमोशनल नीड्स को देखना चाहिए कि मम्मी को क्या पसंद है, ज्यादा मतलब गिफ्ट्स पसंद है या बातें मतलब अच्छे से इमोशनली कनेक्ट होना पसंद है। वो इमोशनल नीड्स फुलफिल करने से अच्छा लगेगा। वो पापा के साथ पापा को क्या चाहिए और तो उन्हें नहीं नहीं, अच्छा यहाँ लग पापा मम्मी के बीच में चाहिए की बात नहीं है। बात है कि टाइम और एनर्जी। ज्यादा टाइम मम्मी को चला जाता है तो पापा को डिसबैलेंस हो जाता है। ज्यादा टाइम पापा को चला गया तो मम्मी को डिसबैलेंस हो जाता है। हाउ टू बैलेंस इट? ओके, सो वी विल बी सीइंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, बॉस और कलीग के बीच में होता है, एक जूनियर और सीनियर के बीच में होता है, और अगर एक आश्रम में 10 जन रह रहे हैं तब तो भर भर के होता है भाई कि लीडर उसको ज्यादा ध्यान दे रहा है। होता है कि नहीं होता है? स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, क्योंकि बिल्कुल एक तरफ में फेवरेटिज्म तो होता ही है। हाउ टू डू इट? कितने लोगों के घर में पानी का टंकी है? हाथ ऊपर कर दीजिए। पानी के टंकी के बिना कभी घर चलता है? उसी तरह हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने एक टंकी दिया है जिसको बोलते हैं लव टैंक। क्या बोलते हैं? लव टैंक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। Inside every one of us is a tank waiting to be filled with love. We have two emotional love tanks. एक टैंक होता है लेने वाला, एक टैंक होता है देने वाला। When the tanks are empty or half filled, we have no feeling towards the loved one and we simply experience pain and emptiness. और ये सबके साथ होता है। अगर आपके मनुष्य शरीर मिला है, कोई नहीं बोल सकता कि मेरे साथ नहीं होता है। अगर उसको महसूस नहीं हो रहा है मतलब उसका हृदय पत्थर दिल हो गया है। थोड़ा सा उसके साथ वर्क करेंगे तो उसको भी महसूस होगा। When the love tanks are empty, we are rude, angry, hurt, sad, or depressed. When the love tank is full, we are happy, fulfilled, and grateful. आप लोगों ने देखा है लोगों का बिहेवियर? कभी कभी कितना भी गुस्सा दिला दो। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब किसी का बच्चा आके माता पिता के सामने करता है आ बाबा 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 बाबा, दोनों हंसते हैं ही, ही। अरे क्या कर रहे हो, अरे चुप कर, हा हा हा, ऐसे। और यही कोई बड़ा आदमी आके करे हा 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 हा, एक थप्पड़ मिलेगा उसको। राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हमारा गिटार का तार बहुत टाइट रहता है और उस पे आके कोई मजाक करता है तो ट्विंग से आवाज निकलता है, और जब गिटार का तार ढीला होता है उसके साथ कुछ भी कर लो प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा टैंक सुबह से रात तक या तो भर रहा है या तो खाली हो रहा है। तो जो इंटेलिजेंट आदमी है उसके दिव्य चक्षु से जस्ट चेहरा देख के वो समझ जाता है कि इसका लव टैंक का स्टेटस क्या है। जैसे विनीत दा को मेरा लव टैंक का स्टेटस कुछ समझ में आ गया कि डॉक्टर साहब आज थोड़े गुस्से में है। राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ये सब का तरीका आप लोग को बताने वाले हैं। द लव टैंक्स ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग आर इंटरकनेक्टेड। When we have a need to give love, we also have a need to receive love. When we have not received love, we are angry and resentful. And when we have not given love, we are guilty. ये दो लाइन को प्लीज नोट कर लीजिए, बाई हार्ट कर लीजिए। अगर आपके अंदर गिल्ट आ रहा है, आपको लग रहा है मैं फालतू हूं, कुछ काम नहीं है, अरे बॉस इस दुनिया में है ही क्या, ना कोई मुझे प्रेम करता है, ना मैंने कुछ अच्छा किया है, मैं धरती का बोझ हूं, पंखा देख रहे हो, लटक जाओ, खत्म करो। और अगर गुस्सा आ रहा है और रिसेंटफुल हो रहा है, दैट मीन्स वी हैव नॉट रिसीव्ड लव। और गोल्डन रूल है दोस्त, इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड लव यू कैन नॉट गिव लव। अगर आपका टंकी भरा नहीं है आप नहीं दे सकते हैं। गलती से भी देने का कोशिश मत कीजिएगा। लव के जगह आप गिल्ट देंगे, एंगर देंगे और रिसेंटफुल देंगे। आप बहुत सुंदर से बच्चे को बोलेंगे
बेटा चॉकलेट खा ले, लेकिन आपका एनर्जी निकलेगा, खींच के लगाऊंगा थप्पड़, चॉकलेट खा के बैठ जाओ, पढ़ाई कर, वो सोल टू सोल ट्रांसमिट हो जाएगा। This is the most important slide of today's presentation. Please take a screenshot. इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 5 तरीके से ही प्रेम को महसूस किया जा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, चाहे अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, साउथ अमेरिकन हो, तेलुगु हो, कश्मीरी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, केवल इसी 5 तरीके से लव को महसूस किया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी में आज क्या प्रॉब्लम हो गया है पता है? जैसे संजय से बहुत अच्छा बात मेरा जो अभी हुआ, उसने बोला बैलेंस होना चाहिए। कृष्ण भी गीता में बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। Anyone who is regulated in his habits of ahara vihar, eating, sleeping, recreation and work, can mitigate all material pains by practicing the yoga system. तो आपको ध्यान रखना होगा कि फिलॉसफी यानी वाई और व्हाट सबको पता है, लेकिन गाड़ी अटकती है हाउ में। कैसे करे बैलेंस, जीवन को कैसे करे बैलेंस, और वो मैं आप लोग को इस स्किल प्रोग्राम से सिखा रहा हूं। जैसे आपका प्रेमी या आपका प्रेमिका या आपके हस्बैंड या आप खुद, केवल कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ घंटों जब तक नहीं बिताऊं उसको प्रेम महसूस नहीं होगा। किसी व्यक्ति को बार बार बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तब उसको प्रेम महसूस होता है। किसी को हर दिन गिफ्ट दो, और वो मैटर नहीं करता है कि बहुत खर्चे वाला गिफ्ट दो तभी। रिसेंटली मेरे पास एक अरबपति आया था और उसका कंप्लेन था कि मैंने कम से कम करोड़ रुपया खर्चा किया है इसी साल अपनी बीवी पे, फिर भी ये बोलती है आई डोंट लव यू। प्रॉब्लम ये था कि उसकी बीवी का था नंबर 1 लैंग्वेज और इसका था नंबर 3 लैंग्वेज। तो ये बेचारा कीमती टैनिश का ज्वेलरी सेट उसको देता था, जबकि बेचारी को चाहिए था नंबर 1। सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो हाथ को ऊपर कर दीजिए। इंटरनेशनल रिसर्च के बाद दिस प्रेजेंटेशन हैज कम अप एंड आई विल कम विद द एक्सेप्शनल केस स्टडीज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति, इसको मैंने समझाया कि तुम्हारी बीबी का लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम। तुम करोड़ों रुपए क्यों खर्चा करते हो? तुम तो एक पैसा बिना खर्चा किए बस उसके साथ बैठो और बातें करो। बात भी नहीं कर पा रहे हो तो बगल में रूम में बैठे रहो, उसको प्रेम महसूस होगा। एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला डॉक्टर साहब मैं थक गया हूं, इसके लिए काम कर करके रोटी सब्जी मैं सब कुछ कर देता हूं, बट बोलती है यू डोंट लव मी। अब उसकी वाइफ का लव लैंग्वेज था 2, बस चूंकि उसका लव लैंग्वेज 4 था, यहां पे गाड़ी फिर घिसक गई। नाउ आई एम सीइंग हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, 30। नाउ यू लुक एट द मैजिक। एवरी पार्टिसिपेंट हैज टू राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज योर लव लैंग्वेज, और मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा कि आपको कब प्रेम महसूस होता है। पहले उसको देख लीजिए, क्या चीज से आपको गुस्सा आता है। जो चीज आपको नहीं मिलता है तो आपको गुस्सा आता है, वो आपका लव लैंग्वेज है। इन 5 में जो चीज नहीं मिलता है जब आपको गुस्सा आता है, वो आपका लव लैंग्वेज है। और कोई आपके साथ ये 5 में जो करे उससे आपको बहुत प्रेम महसूस होता है। तो प्लीज आप लोग सब ग्रुप में लिखिए 1 या 2। जनरली लोगों का 2 होता है या किसी का 3 होता है,
please type in the chat box. Let me see what is the love language of all the participants in this group. Everyone has to type, और आप लोग अभी खुद हैरान हो जाइएगा. मुझे चैट बॉक्स दिखाओ प्रणव, मुझे नहीं दिख रहा. All of you please type it. इधर को. हाँ. Just see, so amazing. आप लोग देखिए, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हम लोग कितने अलग बनाया है भगवान ने. All 5 not possible. Please reassess yourself very carefully. All 5 not possible. कुछ तो ज्यादा होगा, कुछ कम होगा. 2 3 2 2 1 1 2 4 3 2 2 5 2 4 5. You all have done a great journey in the science of self discovery today. सब कोई लिखिए, सब कोई लिखिए, सब कोई लिखिए, सब कोई लिखिए. चलिए अभी हम बता दे रहे हैं. हमारे संजय जी जो है, जब तक संजय जी से बात करके 1 घंटा प्रेम से बातें नहीं हो, उनको मजा नहीं आता है, राइट? बट he is not bothered much with acts of service, but words of affirmation. प्रेम से बात करो, he'll be very happy. लेकिन हमारे जो प्राणेश है, प्रवेश, राइट, उसके लिए which language is there? हाँ प्राणेश, can you just unmute and tell it in the group? One. Quality time. Yes. घंटों लगा रहता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन दूसरा दोस्त फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जब तक क्वालिटी टाइम महसूस नहीं करेंगे, यानी अगर आपके पास डॉलर है तो आपको लगता है ये डॉलर हर बैंक में चल जाएगा. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन? अभी एक पत्नी है, जब तक उसका हस्बैंड उसको गले नहीं लगाता, उसको लगता ही नहीं है कि वो प्रेम करता है. वो बोला, डॉक्टर साहब मैं घंटों दे दिया उसको, मैं उसको 10 बार बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, उसके लिए गिफ्ट भी ले आता हूं. मैंने बोला कुछ मेहनत करो, जब ऑफिस से आओ एक बार उसको हग कर लो, 2-3 दिन तक वो शांत रहेगी. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली एक आदमी को अगर 4 नंबर है, अब आप बोलोगे अरे बाप रे ये तो बड़ा डेंजर है, इस बेचारे का तो खर्चा का क्या होगा? अरे खर्चा का कुछ नहीं है. गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट मतलब इट डज नॉट बी कॉस्टली. एक दिन वो गुलाब का फूल भी ले आएगा तो वो भी गिफ्ट हो गया. अगले दिन वो एक छोटा सा ईयररिंग आर्टिफिशियल वाला ले आएगा, वो भी गिफ्ट हो गया. तीसरे दिन मार्केट से एक छोटा सा आइसक्रीम भी ले आएगा, उसको लगेगा मेरा पति मुझे कितना प्रेम करता है. और बेचारा दूसरा आदमी बोल बोल के थक गया, फिर भी उसके लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट to understand your love language and understand the love language of your partner, of your spouse, of your children, of your friends, because एक या 2 या मैक्सिमम 3 ही होता है. और दूसरे जगह अगर आप घी डाल रहे हैं, घी को यज्ञ कुंड में डालिए, घी को मिट्टी में मत डालिए. अगर घी को मिट्टी में डालेंगे समय भी जाएगा और पूरा करने के बाद वो बोलेगा यू डोंट लव मी एट ऑल. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. हाउ टू आइडेंटिफाई योर लव लैंग्वेज. नंबर 1, व्हाट एक्ट्स हर्ट मी द मोस्ट. कोई आया आपको बोला हेलो, समय नहीं बिताया, यू विल फील हर्ट. कोई आपके लिए सेवा नहीं करता है, मान लीजिए आप बोलिए एक गिलास पानी दे दीजिए और पानी नहीं लाके दिया, यू फील हर्ट. और आप देखिए कि व्हाट डू यू रिक्वेस्ट अदर्स मोर ऑफन. अरे बैठो ना, कुछ कुछ लोग मैंने देखा है, मैं उनसे मिलने जाता हूं, अरे डॉक्टर साहब बैठिए ना, क्या हड़बड़ी लगा रहता है आपको. अब बताइए कौन सा टाइप है? ऑल ऑफ यू शो मी. कौन सा टाइप है? ऑल ऑफ यू शो मी विथ फिंगर. वेरी गुड. 1. एक बार एक व्यक्ति ने मुझे रिसेंटली बोला, पता है डॉक्टर साहब, आई गेव हिम अ बुक JOSD. इतना इमोशनल हो गया, आई वाज शॉक्ड. बोले डू यू नो, ही इज अ वेरी रिच पर्सन फ्रॉम रांची. बोला पता है डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं आपको दिल से. मैंने बोला क्या? मैं लोगों को गिफ्ट दे दे के थक गया, दे दे के थक गया, मुझे कोई गिफ्ट देता ही नहीं है. मैंने बोला अरे सर आपको गिफ्ट की क्या जरूरत, आप तो अभी मतलब इतना आपके पास है. सर है से क्या होता है, कोई कुछ देता है तो अच्छा लगता है, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूं ना.
Now tell me, what is the love language? All of you please tell me. Yes. अब एक व्यक्ति है, मैं जब उसके पास गया, उसको एक गिलास पानी भर के दे दिया. He was like, sir, पता है मेरी बीवी भी मुझे आज तक कभी पानी नहीं पूछी है. आई एम फीलिंग सो डीपली टच्ड. अब बताइए उसका लव लैंग्वेज क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. नंबर 4. और जिसका फिजिकल टच है उससे जाके प्रेम से हाथ मिलाओ. और हाथ मिलाने का भी अलग अलग स्टाइल है. कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं. हाँ, जैसे कि अभी संजय से कुछ दिन पहले एक लड़का मिला था, तो संजय उसको एकदम जोर से हाथ दबाया और उसने टच थेरेपी दिया, है ना. फिर संजय आके बोला, क्या तरीका है डॉक्टर साहब, कोई एहसान कर रहा है क्या मेरे पे हाथ करके? और वो दूसरे व्यक्ति ने मुझे बोला, अरे कितने जोर से हाथ दबाता है. नाउ टेल मी, संजय इज वन ऑफ द थिंग इज 5 और उसका वो है ही नहीं. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिन लोगों का 5 नहीं होता है वो कभी 5 देते नहीं है, लेकिन दूसरे आदमी को प्रॉब्लम भगवान जोड़ी ऐसे बनाते हैं ना कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. तो जनरली जो आपको भाता है ना उसका उल्टा दूसरे को भाता है. होता है कि नहीं? हाथ ऊपर कीजिए. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ दिस क्लास? लेट अस गो अहेड. क्वालिटी टाइम मतलब क्या? लेट अस डिस्कस. क्वालिटी टाइम मीन्स गिव समवन योर अनडिवाइडेड अटेंशन. अगर मुझसे कोई बात कर रहा है और मैं बोल रहा हूं हाँ 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 बोलो क्या है, ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ मैं एक मिनट दे. दिस इज नॉट क्वालिटी टाइम. वो आदमी इरिटेट हो जाएगा. डूइंग समथिंग विथ हर दैट शी एंजॉयज डूइंग एंड डूइंग इट होल हार्टेडली. यानी जब वो कुछ कर रही है, बर्तन धो रही है, आप भी जाके एक बर्तन धो दो, वो उस दिन सोचेगी आज मुझे बहुत अब आपको क्या फर्क पड़ रहा है? एक बर्तन धो के अगर आपका 6 घंटा बच जा रहा है, इट इज इंटेलिजेंस, राइट? Point number 3, quality time involves conversation, listening and talking where experience, thoughts, feelings and desires are exchanged in a friendly, accepting and non-threatening atmosphere. Generally जो लोगों को सेवा लगता है ना उनको बातें अच्छी नहीं लगती, और जिन लोगों को बातें अच्छी लगती है ना उनको सेवा की जरूरत होती नहीं है, इसीलिए मस्त झगड़े होते हैं घर में. And love for them is not LOVE. Love for them is TIME. जो लोगों का लव लैंग्वेज 1 है, कभी भी उनके साथ ये गलती मत कीजिएगा. डिस्ट्रैक्शंस, डेट्स को पोस्टपोन और उनके बातों को ध्यान नहीं देना. धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाएंगे क्योंकि उनका लव लैंग्वेज है टाइप 1. हाउ टू फाइंड आउट? अगर किसी का 1 है और आपने उस टंकी के साथ बहुत जुल्म किया है 20 साल तक, तो क्या करने का? आस्क क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स अ मोर देन यस और नो. सबको समझ में आ रहा है? ऐसा प्रश्न पूछो कि यस और नो से ज्यादा में जवाब हो. और ये क्या प्रश्न होगा? हु वॉज योर फेवरेट टीचर? क्या कोई यस बोल सकता है? What was the most fun part of the day? What was the worst part of the day? What was painful in your childhood? What is the worst mistake you made? दूसरा आदमी को लगेगा अरे वाह क्या बात है, इतना प्रेम दिया इसने, इतना प्रेम दिया इसने. अब ये बेचारा बोल रहा है कोई प्रेम मैं नहीं दे रहा हूं, मैंने डॉक्टर सौरभ का सेमिनार अटेंड कर लिया है, तू समझ रही है. अरे क्या फर्क पड़ता है, जब तक जो जैसा समझ रहा है, फेयर इनफ. साथ में खाना बनाइए, साथ में ड्राइव के लिए जाइए, आई कांटेक्ट, स्विच ऑफ मोबाइल्स व्हाइल टॉकिंग, बोर्ड गेम, फैमिली वेकेशन, प्रे टुगेदर, फोटो एल्बम बनाओ, अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी बनाओ, खाना साथ में बनाओ, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड बी टुगेदर. वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, लव लैंग्वेज 2. प्रेम से बोलो, काइंड से बोलो, एनकरेजिंग से बोलो और विनम्रता से बोलो. ओके? अवॉइड क्या करना है? इंसल्ट और क्रिटिसिज्म.
अगर ये कर दिए तो टंकी में अचानक से आपने एक डायनामाइट लगा दिया और पूरा पानी ड्रेन कर दिया बेचारे का। अब जिसका वर्ड्स है लव लैंग्वेज और उसको आप गंदी तरीके से बात करते हो तो बेचारा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? भगवान ने उसके प्रारब्ध कर्म ऐसे बनाए हैं, पिछले जन्म में उसका 2-3 था तो इस जन्म में 1-4 कर दिया, और उस बेचारे का पिछले जन्म में 1-4 था तो इस बार 2-3 कर दिया और दोनों को साथ में ले आए। चलो एक दूसरे का शुद्धि करो, दुखालयम अशाश्वतम। अब मान लीजिए किसी का वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है तो क्या करने का? राइट ऑन योर डेस्कटॉप और मेक प्लेकार्ड्स। क्या बोलना है, कब बोलना है? बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, अगर बोलोगे तभी प्रेम महसूस होगा। तो कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं, अरे ये बार बार क्या, आई लव यू आई लव यू आई लव यू लव यू। बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका वर्ड ऑफ एफर्मेशन वही है। छोटे बच्चे का भी हो सकता है ये। कीप अ रिटन रिकॉर्ड फॉर अ वीक of how often you have appreciated the other person. अगर वो रोटी एकदम सिंपल भी बनाती है ना तो उसको बोलो, अरे रोटी बहुत अच्छा बना है। उसको लगेगा कितना प्रेम करता है मुझसे। अब रोटी कुछ अच्छा नहीं बना है, वैसा ही बना है, लेकिन आप बोलिए रोटी आज अच्छा बना है। क्या करो, हेल्प तो कर सकते हो। सेट अ गोल टू कॉम्प्लीमेंट डेली, राइट अ टेक्स्ट। और इन लोग को अगर मैसेज में लिख दिए ये तो फिदा हो जाएंगे आपके ऊपर। लिखो, मतलब उसको तुरंत मत बोलो रोटी अच्छा बना था। ऑफिस चले जाओ और वहां से लिखो, आज का रोटी बहुत ही अच्छा था। पता है वो क्या करेगी? बार बार खोलेगी मैसेज को और देखेगी, फिर बंद करेगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर खोलेगी, और जितना बार पढ़ेगी उसको लगेगा कितना प्रेम करता है ये मेरे को। और आप मस्त मैसेज भेज के आराम से अपना काम कर रहे हैं। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? देखिए विनू मैम कैसे हंस रही है, तरुण कांति कैसे हंस रहा है। हमारे दिवाकर मिश्रा सर का स्माइल देखिए, पृथ्वी जी के चेहरा देखिए, रौनक देखिए। ये सेमिनार लोगों के जीवन को बदल देता है। 20 साल तक मैं पापा मम्मी को समझ नहीं पाया, न पर्सनैलिटी समझ पाया, न लव लैंग्वेज समझ पाया। मेरे पापा का लव लैंग्वेज है वर्ड्स, मतलब एक्शन। सेवा करो। जैसे ही मैं घर में जाता हूं पापा का लिस्ट रेडी होता है, बेटा लिख लेना। मतलब बात करने से तुम कैसे हो, उससे पहले बोलेंगे बेटा लिख लेना। पहले हमको लगता था क्या इनसेंसिटिव बिहेवियर है, कम से कम पूछो तो। अरे भाई विनम्र बनो। तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को तृण से भी नीचा समझे, जो अपने आप को वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु समझे, one who gives all respects to others, not some respect to other, but one who gives all respects to other and expects none in return, in such a state of mind, कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा ही व्यक्ति हरि कीर्तन में असली रूप से संलग्न रह सकता है। Talking about a goal verbally and discussing how to reach it. When you need to be out, leave a series of notes for your loved one. स्टिकी देखा है आप लोगों ने? स्टिकी, येलो स्टिकी, लाल स्टिकी, ऐसे उसको लिख के दो, स्टिकर लगा दो जहां पे वो रोटी बेलती है। द चपाती वॉज वेरी नाइस। समझिए कि वो पागल हो जाएगी उस दिन। आपका थॉट्स उसके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? When someone makes a mistake, first tell them how you trust their intentions and that you love them, and then you correct them. हम लोग जब लोगों को करेक्शन देते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, कौन बोले आपको ऐसा कहने के लिए, समझ में नहीं आता कुछ। अरे भाई क्या हो गया? अब मैं जब लोगों को करेक्शन देता हूं, पहले तो मैं इमीडिएटली करेक्शन कभी नहीं देता हूं। 5 दिन गुजर जाता है, 7 दिन गुजर जाता है, फिर मैं प्रेम से बोलता हूं, अरे प्राणेश थोड़ा सा आज आओगे, इंपॉर्टेंट बात करना था। और रूम में बुला के दरवाजा को अंदर से बंद करता हूँ। दरवाजा अंदर से बंद हो गया मतलब समझिए हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए नहीं, लायन आ जाए अभी। आप समझ गए? उसके बाद मुंह लटकने लगता है दूसरे व्यक्ति का, तब मैं बोलता हूँ वो एक्चुअली 7 दिन पहले जो आपने किया था ना, एक्चुअली आप बहुत अच्छे हो और आपका इंटेंशन बहुत ही, अब वो समझ गया कि मिलने वाला है ना। तरीके
तरीका है। सैंडविच के बिना क्या बटर अच्छा लगता है क्या? ऊपर ब्रेड, यानी पहले ग्लोरिफिकेशन, बीच में करेक्शन, और उसके नीचे फिर ब्रेड, ग्लोरिफिकेशन। यानी बोलेंगे प्राणेश तुम बहुत ही अच्छा सेवा हो रहा है और अच्छा भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, गीता भी आप पढ़ रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा ना कि थोड़ा सा केयरलेसनेस को अवॉइड कीजिएगा, लेकिन वो हो जाएगा, यू आर डूइंग योर बेस्ट, ऐसे करेक्शन देना चाहिए। ग्लोरीफाई इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज तो करना नहीं है, करेक्ट इन प्राइवेट। हम लोग उल्टा करते हैं, 10 जन मिलके पार्टी में जाते हैं और बड़ा सुंदर सा जोक मारते हैं, हंसते तो सब है लेकिन दूसरा आदमी खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? रेज योर हेड्स। सो मेरा लाइफ में गोल्डन रूल है, आई विल नेवर गो इन अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में बस प्रजल्प होता है, डीप कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन मैं बातें करता हूं ओनली 1 to 1। 1 to 1 में लोग अपना दिल खोलते हैं और ग्रुप में लोग दिमाग खोलते हैं। दिमाग से क्या मतलब है? दिल से मतलब है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम। गिव स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द अदर पर्सन। फ्लैटरिंग मत करो, जो सच्ची बात है वो बोलो। कभी कभी हम ग्रुप में बोलते हैं कि क्लास में क्या अच्छा लगा, तो लोग मैसेज में लिखते हैं क्लास वाज वेरी नाइस। लोग क्या लिखते हैं मैसेज में? क्लास वाज वेरी नाइस। नेवर डू सच टाइप ऑफ ग्लोरिफिकेशन विच इज ब्लैंकेट। ऑलवेज मेक स्पेसिफिक ग्लोरिफिकेशन। क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा, क्या फील हुआ, और आपके जीवन में आप क्या अप्लाई करेंगे जिससे आपको क्या बदलाव होगा। अगर आप बोले क्लास बहुत अच्छा था, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया। Some quotes that you read in the magazine, send it to the other and say this reminded me of you. Put notes in areas like breakfast dish where they'll see it in the morning. सबको समझ में आ रहा है? All of you understanding, right? आज मैं आप लोग को एक सरप्राइज भी दूंगा। अभी मैं प्रणव को बोलता हूँ ये रेडी करने, ये चैट बॉक्स में ये वाला रेडी करना है। प्रणव, ये वीडियो में सबको दिखाना चाह रहा हूँ आज। ओके, I'll just show you. Just give me 1 second। हाँ, ये वाला ठीक है। ओके, लो रेडी रखना। Going to the next one, giving and receiving gifts. Gifts are visual symbols of love. सच सच बताइए तो गिफ्ट कितने लोगों को अच्छा लगता है? गिफ्ट पाना कितने लोगों को अच्छा लगता है? संजय दोनों हाथ उठा रहा है, कुछ लोग एक हाथ उठा रहे हैं। और गिफ्ट देना कितने लोगों को अच्छा लगता है? सच सच बोलिए तो। यस यस यस। बट देयर आर पीपल आई नो जिनको गिफ्ट बिल्कुल लेना अच्छा नहीं लगता है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है गिफ्ट लेना। आप लोगों ने देखा है, राइट? गिफ्ट्स आर विजुअल सिंबल्स ऑफ लव। Gifts come in all shapes, sizes, and colors. It is not the cost which is important. It is about how much you care. Gift of the self is an intangible gift, and it can also be the gift of your presence. For them, it is that what is count. कितने लोग बहुत सोचते हैं कि इसको क्या गिफ्ट दूंगा। कुछ लोग ऐसे ही लास्ट डे गिफ्ट खरीद के दे देते हैं, लेकिन मेलंकली जब गिफ्ट देगा ना, वो 1 सप्ताह तक सोचेगा कि क्या चीज दिया जाए जो उसको जरूरी भी है, वो एक्सपेक्ट भी ना करे, और मिलते ही उसका दिल पिघल जाएगा आइसक्रीम के तरह। आप लोग को समझ में आ रहा है, राइट? गिफ्ट्स हैव अ वेरी डीप सिग्निफिकेंस इन लाइफ। और जिसका लव लैंग्वेज है गिफ्ट, उसका बर्थ एनिवर्सरी और मैरिज एनिवर्सरी अगर 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 आप मिस कर गए, हो गया कल्याण। बर्थडे के 1 दिन बाद अगर आपको याद आया और उस दिन आप गोल्ड सेट के जगह डायमंड सेट भी दे दिए,
ट्रेन तो निकल गई, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कितना ही आप जाके समझाओ उस व्यक्ति को, अरे एक्चुअली पता है मुझे याद था, एक रात पहले तक याद था, 12 बजे के 1 सेकंड पहले तक याद था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 12 बजे ब्लैकआउट हो गया। वो आपको जीवन से ब्लैकआउट कर देगी। तो क्या करने का? रिमाइंडर लगाओ, 10 जन को बोल के रखो, स्पेशली अगर बीवी हुई, स्पाउस हुआ, तब तो ये गलती का कोई भरपाई नहीं है। और कुछ लोग कुछ भी दे देते हैं। हाँ, बेचारे के पास 25 शर्ट है तो उसको शर्ट दे देंगे एक और अगर वो सेंसिटिव आदमी टाइप 3 है और अगर उसका गिफ्ट लैंग्वेज है, समझिए कि आपने काम तमाम हो गया। अब कितना ही आप सेवा कर लीजिए, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका करेंसी डॉलर है और आप उसको बांग्लादेशी टाका दे रहे हैं। टाका, उसको टाका नहीं चाहिए, उसको अपना जो आपने इतना बड़ा चोट दिया है उस पे टाका चाहिए। Doables for giving and receiving gift. Try leaving a gift outside the door for your loved ones. डायरेक्टली मत दीजिए, एक बाहर ऐसे लगा के। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो क्रिसमस में सेंटा क्लॉज का पापा मम्मी मोजा में डालते थे। हमको लगता था मोजा में सेंटा क्लॉज देके जाता है, तो हम वेट करते थे सुबह कब होगा और कब मैं मोजा में जाके निकालूंगा, बड़ा अच्छा लगता था। गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस, gift your loved one every week or a month. Offer gift of your presence. I want to offer the gift of my presence. Give a living gift, a plant that grows and reminds the gift. ऐसा गिफ्ट दीजिए तो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे बैम्बू शूट्स होते हैं या छोटा सा पौधा बढ़ता है। जनरली मैं फूल नहीं देता हूं लोगों को, फूल तो एक दिन में सूख जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा दे दिए या कुछ दे दिए, हर दिन जब वो तुलसी के पौधे को पेड़ देगा, अब जल देगा, तो उसको किसकी याद आएगी? धन्यवाद। भगवान की याद आनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी आ रही है तो आपको आपकी चेतना सुधारने की जरूरत है। ओके, सो वी आई एम जस्ट टेलिंग दैट इट हैपेंस लाइक दिस, राइट? दैट व्हाट यू नीड टू डू, गिव द गिफ्ट विद अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग। अब कुछ लोग इतने ग्रॉस होते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे अंदर खोलने का क्या जरूरत है भाई, वो कागज वेस्ट करके क्यों पैसा बर्बादी करने का। लेकिन जिन लोगों का गिफ्ट होता है ना, उनको खोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, और बाहर में कैसे लगाया क्या किया। लेकिन कोलेरिक लोगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, वो प्लास्टिक में डाल के दे देते हैं। क्या फर्क पड़ता है, टाइम क्यों वेस्ट करने का। लेकिन टाइप 3 का पैकिंग देख लोगे तो बेहोश हो जाओगे। आर्चीज का कार्ड लगाएगा, स्माइली लगाएगा, रिबन को ये करेगा, उसमें घंटी लगाएगा, उसमें सजाएगा उसको। और टाइप 1, ओ माय गॉड, उसका गिफ्ट बाहर से ही दिखेगा, दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल झाड़ रही थी, पास जाके देखा तो कुतिया पूछ हिला रही थी। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग स्लैंग्स, बट उसका गिफ्ट का कवर इतना सुंदर होता है, लेकिन अंदर में कुछ और ही होगा। पृथ्वी जी को मैंने हंसा दिया। आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टुडे। पृथ्वी जी द सेंट, एक्चुअली वो साधु है। Select a song appropriate for the loved one and send it to them. अब मैं आपको बता रहा हूं, जिसका गिफ्ट है ना उसको हैप्पी बर्थडे कैसे भेजना चाहिए पता है? उसको कभी हैप्पी बर्थडे बोलिए मत, उसको एक वॉइस मैसेज भेजिए, और वॉइस मैसेज जैसे ही वो सुबह खुलेगा उसमें क्या आएगा? हरे कृष्णा टू यू, हरे राम टू यू, हरे कृष्णा टू यू। अब वो बार बार उस ट्यून को लगा देगा, रिपीट मोड में लगा देगा, और जितना बार हरे कृष्णा बजेगा उसको आपकी याद आएगी और उसको लगेगा कि कितना आप उसको प्रेम करते हो। ऐसे लोगों के साथ लेजीनेस कभी मत कीजिएगा, कमिटमेंट कभी मत तोड़िएगा, और वर्क स्पेस को कंट्रोल में रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, डूएबल एक्ट्स ऑफ सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Ask 10 things that your loved one wants you to do in a month. Ask if I could do one special. मैं एक बार सबको म्यूट कर दे रहा हूं. I'm just muting everyone. Ask if I could do one special thing this week for you. What would you want me to do that? Make a favorite snack. Make a birthday dinner for your loved one. If your loved one is running late, help them to finish the work. इनको काम में मदद कर दीजिए, ये लोग दीवाना हो जाएंगे आपके. Connect your loved ones to someone in the area of interest. Say dance, music or reading. और physical touch. जब तक इनको टच नहीं करो, इनको प्रेम महसूस ही नहीं होता है. Now don't take this in a negative connotation of, sexual way or that way. No. It could just be a simple pat on the back, or it could just be a physical touch of holding the hand, right? Physical touch is a way of communicating emotional love. Physical presence and accessibility are important. अभी इसमें ठीक है, mentioned है, in a relationship, sexual part is important, and Krishna tells in Bhagavad Gita. मेरा एक YouTube video है, sex in spiritual life. Any act of procreation done in a way which is natural, by which progeny is born, who are beneficial for this world, who do good to themselves and do good to others, Krishna says that I am that kind of sex life also. Sexual intercourse is just one dialect of expressing love. Running the hand through the hair or shaking the hands are different levels of physical touch. जिन लोगों का physical touch love language है, उसको अगर आप neglect करते हैं और abuse करते हैं, that is the worst thing you can do to such a other person. That person will never ever feel that you loved him. Doables for physical touch: hold hands, hug, embrace, public display of affection, holding hands, pull up the blanket for other, develop a unique handshake, high five मतलब ऐसे करते हैं ना लोग, high five, right? Buy gifts that are touch oriented, like a pillow or a teddy bear. Now, tank को भरना आना चाहिए. Learn the love language of the loved ones. Continue choosing to speak that love language consistently for a period of 6 months. Normally, it is observed that when emotional tank starts getting filled, feelings of gratitude, happiness, and joy are felt, and others also start to reciprocate, and our emotional tank starts filling. Right? तो एक कोट के साथ आज के क्लास को खत्म करेंगे. इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने आज ग्रुप में डाला था. जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं दैट रिलेशनशिप इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, पेरेंट चाइल्ड इश्यूज, डॉक्टर पेरेंट इश्यूज, डॉक्टर पेशेंट इश्यूज, employer employee issues are happening because people don't understand this important thing. I often found my conflicts coming up when I or someone else had an implicit expectation from the other person without checking with him if they had actually signed up to my expectation. अब प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग का लव लैंग्वेज जो है, हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उसका भी वही होगा. इसीलिए करोड़ों का गिफ्ट देने के बाद भी दूसरे आदमी को प्रेम महसूस नहीं होता है. तो क्या करने का? नॉलेज गेन करने का. ASK फॉर्मूला. A for attitude, S for skill, and K for knowledge. Now, when I see any implicit expectation from me for the others,
I try to clarify transparently and then see what works for all of us to make an explicit request or a mutually consented agreement. जैसे इस दुनिया में कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, वैसे ही आप जो आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअली में जो वो समझ के रेसिप्रोकेट करते हैं, वो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो इसको हम लोग समाप्त करें और लव लैंग्वेज को समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। Now very important, I wanted to tell of all of you कि मैंने अपने कोचिंग में एक मॉडिफिकेशन किया है और आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। Depending on my intuitions, I always move with my intuitions, जो मुझे अंदर से फील आती है। तो मैंने क्या किया, जितना भी नॉलेज I have collected in this lifetime, I have tried to give the basics of that in my YouTube lecture. मैंने कुछ अपने पास रखा नहीं है, खुल के दिया है। ये है लेवल 1। लेवल 2 है मास्टरमाइंड क्लासेस जो मैं फ्रीली देता हूं। तो जैसे मैंने, देखना किसका फोन है, बोल दो जूम क्लास चल रहा है। जैसे मैंने पर्सनालिटी प्लस का एक क्लास दे दिया और वो YouTube में भी अवेलेबल है, बट वेरी सून उस क्लास का डिटेल्स, जैसे रॉबिन ओसवाल जी पूछ रहे थे मुझे, आई विल बी गिविंग इट इन द ऐप फॉर अ एनर्जी एक्सचेंज, जिसमें आप उसको बहुत डीप लेवल पे समझ सकते हैं, राइट? उसी तरह से ये लव लैंग्वेज को मैंने आज मास्टरमाइंड में कवर कर दिया है, लेकिन ये एक्चुअली 5 डे का इंटेंसिव कोर्स है। जिस तरीके से पर्सनालिटी प्लस एक इंटेंसिव कोर्स है, तो वो भी मेरे ऐप में रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है ओवर अ 1-to-1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट विल बी अवेलेबल इन द ऐप। सो इससे आई फील सेटिस्फाइड। जैसे एक मंदिर में खिचड़ी भोजन सबके लिए फ्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू एनी इस्कॉन टेम्पल इन वृंदावन, तो खिचड़ी फ्री फॉर ऑल रहता है, चाहे लाखों लोग आ जाए। लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, then there is a system by which they can get it in the temple, जहां पे वो शॉप में भी मिल जाता है। तो उस तरीके से I have tried to keep the basics free for all, but if anyone wants to become an expert or a trainer, he has to go through the intensive course. So thank you very much. It was a pleasure.